أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلا تجعله ملتبسا علینا فنضل۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن کے شروع میں سورہ فاتحہ سے قرآن کو شروع کرنے والی بات ہے، اس میں کچھ نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ہم نے اس کو شروع کیا تھا کہ الحمدللہ کل شکر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تمام طریقے اللہ کے لیے ہیں، اس کا جو احساس ہے یا انسان کو یقین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنے پر جو ہے وہ آ جائے گا، یا وہ اس کا جو ہے یقین میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا اگر انسان اللہ کی جو صفات آگے ذکر ہے ان پر غور کرے۔ جیسے رب العالمین ہے، عالمین کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت سارے ہیں، ایک غیب کا عالم ہے، ایک امر کا عالم ہے، پھر فرشتوں کا ایک عالم ہے، جنوں کا عالم ہے، اسی طرح انسانوں کا عالم ہے، پھر یہ ہے جانوروں کا عالم ہے، چرند پرند سمندری مخلوق، یہ سارے جو ہیں وہ عالم۔ تو اس کو ہم نے کھولا تھا اور دیکھا تھا کہ یہ اللہ کی تخلیقات جو ہے وہ ہمارے ارد گرد، اور ہم خود اللہ کی تخلیق کا ایک بہت بہت بڑا شاہکار ہے۔ تو اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کو جو ہے وہ لا محالہ اس کے اندر سے یہ آواز آئے گی، جو ہے وہ اس کا دل کہے گا کہ ہاں کل شکر تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کے بعد پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد نے کچھ بات کی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ عبادت جو ہے کہ کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے ان کو 10 مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے، کہ 10 قسمیں لکھی ہیں کہ 10 قسم کی جو ہے وہ مختلف عبادات ہیں، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، قرآن ہے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہے، حلال روزی ہے، پڑوسی اور ساتھیوں کے ساتھ کے حقوق ہیں، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلی ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے مسلمان پر وہ نماز ہے۔ اس میں ہی ہم بہت زیادہ کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں۔ ہمارے معاشرے کا کوئی 1% جو ہے وہ شاید نماز پڑھتا ہوگا، اوور آل مسلمانوں کا بھی لگائیں گے تو یہی ریشو نکلے گی، اس سے آگے پیچھے اس سے زیادہ نہیں۔ تو اتنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ جیسے جیسے یہ زمانہ گزرتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جو ہے وہ زمانہ کا بہت بڑھتا گیا، انسانوں میں جو ہے وہ کمزوری آتی گئی، مسلمانوں میں عملی کمزوری ڈلتی گئی، اور آج ہم جو ہے وہ اس حال میں ہیں کہ ہمیں نماز کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ تو ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو مسلمان اور نماز یہ ایک ہی چیز ہے، دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، اصولی طور تو ایسے ہی ہے۔ تو اس بارے میں وہ کہا کہ بہت سخت سخت فتوا بھی موجود ہیں۔ تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ عبادت جو ہے جیسے ایک رزق حلال جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ ایک انسان اگر عبادت گزار اپنے آپ کو سمجھتا ہے نماز پڑھ کے، اور وہ حرام کما رہا ہے، تو جو ایاک نعبد کا وعدہ ہے یا جو اس کا دعویٰ ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے حلال ہم جانتے ہیں، اس کے حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح جھوٹ نہ بولنا بھی عبادت ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ نمازی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہر انسان کو جو ہے وہ اصلاً اپنے کریکٹر پر غور کرنا چاہیے سب سے پہلے، کہ اگر میں اللہ کا بندہ ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاؤں، پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں نماز پڑھوں،
پھر میری ذمہ داری ہے کہ اگر مجھ پر جو ہے وہ روزے فرض ہیں تو روزہ رکھوں، حج فرض ہے تو حج کروں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کروں۔ اسی طرح جو باقی یہ معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کروں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، جھوٹ نہ بولوں، اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو صحیح طریقے سے کاروبار کروں، جھوٹ بول کر مال نہ بیچوں، قسم کھا کر مال نہ بیچوں، اسی طرح دو نمبر مال نہ بیچوں، جو ہے وہ دھوکہ دے کر مال نہ بیچوں۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوسرے انسان ہے، کسی کا حق نہ ماروں، کسی کی جو ہے وہ حق پر قبضہ نہ کر لوں، کسی پر ظلم نہ کروں، زیادتی نہ کروں۔ تو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں، اور انسان ان کا، مسلمان ان کا پابند ہے۔ تو اصل میں وہی بات ہے، پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہر لمحہ اللہ کا بندہ ہے، اس پر اللہ کی بندگی ہر لمحے لازم ہے، تو وہ کسی بھی لمحے اللہ کی بندگی سے باہر نہیں۔ اچھا، ایک دو چیزیں جو نوٹ کرنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ، اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز جو پہلے مجھے بتانی چاہیے تھی وہ ابھی بھی آج مجھے لیٹ یاد آئی ہے، کہ یہ جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ مختلف تفاسیر سے پڑھ کر، میں جو ہے وہ اس میں زیادہ تر بیان کرنے کا کام کرتا ہوں۔ اس میں مختلف تفاسیر ہیں، جیسے معارف القرآن ہے، تحکیم القرآن ہے، تفسیر القرآن ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اور جو ترجمہ ہے آیات کا وہ جو ہے وہ آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی اسلامی صاحب کا ہے، وہاں سے لیا۔ تو یہ جو مختلف کتابیں ہیں وہاں سے جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، جو عبادت ہے اس میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کی جاتی، اس عبادت کا اظہار جس طریقے سے اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ایک چیز سجدہ ہے اور ایک رکوع ہے۔ یہ جو رکوع اور سجدہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے سامنے جائز نہیں۔ اسی طرح ویسے بھی جو انسان کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ ایک عبادت ہے، ایک عبادت کا طریقہ ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ اللہ کو پسند نہیں آئے گا نا۔ مطلب اگر آپ وہی طرز عمل جو اللہ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہی طرز عمل کسی دوسرے کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ اختیار کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتا۔ تو سجدہ اور رکوع اللہ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو جائز نہیں۔ اچھا، اس میں پریشان ہونے کے بعد ضرورت نہیں ہوتی، اگر انسان انسانوں کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پیش آنا چاہتا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی پیر ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، تو بہت سارے دوسرے طریقے ہیں اظہار تعظیم کے جو انسان کر سکتا ہے، جیسے جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے آپس میں ایک دوسرے کو ملنے کی، السلام علیکم، تو یہ اچھی دعا ہے، یہ خوبصورت دعا ہے، اللہ کے آپ پر سلامتی ہو، تو یہ بھی ایک تعظیم ہی ہے۔ اس کے علاوہ خندہ پیشانی سے ملنا، خوشی سے ملنا، اچھی جو ہے وہ طرح جو ہے وہ استقبال کرنا، اچھا ہے کوئی بندہ آیا ہے تو اس کی ضیافت اچھی طرح کر دیں جو کہ انسان کے استطاعت کے اندر ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ویسے ہی تعظیم کا اظہار کرے جیسے اللہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں یہاں شیطان کا جو ہے وہ وار یا دھوکہ ایک آ جاتا ہے کہ وہ اکساتا ہے انسان کو کہ انسان ویسے ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنا شروع کر دے جیسا اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ انسان کے اندر، مطلب وہ جو انسان کا عمل ہے اس سے بجائے ثواب کے گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی، اسی طرح جو نظر ہے، جو نظر مانی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانی جائے گی، یہ بھی نظر بھی ایک عبادت کی قسم ہے۔ اسی طرح جو قسم اٹھانا ہے تو قسم بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں اٹھائی جا سکتی، وہ بھی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد کے ساتھ جو ہے وہ اگلی حصہ ہے وہ ایاک نستعین کا ہے، کیا اللہ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، اس کا بھی جو دیکھیں یہ دونوں اکٹھے کیوں ہیں یہ تب سمجھ آئے گی اگر عبادت کا مفہوم صحیح طرح انسان کے اندر سمجھ آ جائے نا۔ تو پہلی تو بات ہے ہر عبادت کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر، جو اللہ انسان کو طاقت دیتا ہے اس کے بغیر انسان کوئی بھی عبادت اللہ کی جو ہے وہ بجا نہیں لا سکتا۔ لیکن اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اچھا مسلمان معاشرے میں نیکی کی طرف بلانے کی وجہ سے اتنی ایگزسٹنس یا جو ہے وہ واپس مشکلات نہیں آتی، لیکن جب کسی لوگوں کو منکر سے روکیں گے نا، جیسے ظالم کو ظلم سے روکنا بھی عبادت ہے، تو اگر کوئی ظالم کو ظلم سے روکے گا تو پھر اس لمحے آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں، یہ کام تو اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
ظالم کو ظلم سے روکنا، اس کا حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس پر استقامت، اور پھر اگر اس پر کوئی مشکل آ جاتی ہے اس پر صبر بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح اگر آپ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، اب یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اب اگر اللہ کی مدد شامل نال حال نہ ہو تو انسان اس معاملے میں کمزوری دکھا سکتا ہے، اور جو ظالم کا خوف ہے وہ انسان کو وہ حق بات کہنے سے روک سکتا ہے، اس لیے بھی اللہ کی جو ہے وہ مدد چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت صحیح طریقہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کس طرح کی عبادت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح کی عبادت ہوں گے، کس طرح سے عبادت ہوگی تو اللہ کو اچھی لگے گی، اللہ کو تعظیم کس طریقے، تو یہ ساری باتیں اللہ کے بتانے پر موقع، تو اس کے لیے بھی انسان کو اللہ کی مدد چاہیے۔ تو انسان جو ہے وہ اس دوسرے حصے میں اس آیت کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، میں تیری مدد تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور تیری مدد مانگوں گا۔ اچھا، اس میں بھی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ انسان کسی سے مدد نہیں مانگ سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے عالم امر، ایک ہے عالم خلق، یا اس کو آپ اگر ایک عالم غیب کہہ لیں، اور ایک جو حاضر ہے دنیا ہے تقریب ہے وہ ہے۔ یہاں کسی سے مدد مانگنا وہ مختلف چیز ہے، جیسے مجھے کوئی چیز مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی تو میں اپنے کسی دوست سے کہوں گا یار میری مدد کر دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں کسی مالدار آدمی سے کہوں گا میری مدد کر دو، کسی انسان کو کوئی بھی ضرورت دوسرے انسان سے پڑے گی تو وہ مدد کے لیے اسے پکار سکتا ہے، یہ ہے موجود۔ لیکن جیسے ہی جو دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں، وہ انسان چلا جائے یا اللہ جیسے غیب میں ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ غیب میں اس کے ساتھ کسی دوسرے سے مدد مانگی جائے۔ جب تک انسان اس دنیا میں حاضر ہے اس انسان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، دعا کرائی جا سکتی ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بندہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، جو نظام ہے اس دنیا کا۔ لیکن جیسے ہی وہ انسان، وہ اللہ کا ولی ہو، کوئی صحابی ہو، یا اللہ کے رسول ہو یا انبیاء ہو، جیسے ہی وہ اس دنیا سے غیب میں منتقل ہو جائیں گے، اب وہ ڈومین اللہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق رکھا ہوا ہے تو تکلیف بھی یہ جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کی وجہ ہے، لیکن اس وہ خاص اللہ نے اپنے ساتھ اس کا ایک تعلق رکھا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے کہ کسی کو پکارا جائے۔ اچھا، اس نہ پکارنے کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، جیسے اس میں بھی ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے قرآن میں مختلف آیات ہیں، مختلف اصول میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، جیسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو اب یہ واضح طور پر ایک دلیل ہے قرآن سے اور احادیث کی میں اس پہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اب اگر کوئی انسان یا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی جو ہے وہ اہل علم میں سے بندہ اس کے برعکس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ظاہر بات ہے دلیل اسے قرآن و سنت سے دینی پڑے گی کہ یہ استثناء ہے اس میں۔ عام طور پر جو ہے وہ اس بات پر اتفاق ہے تمام مکاتب فکر کا جو اہل سنت کے ہیں، جس میں جو ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اس تصور کے ساتھ کہ جیسے اللہ مدد کر سکتا ہے ویسے ہی دوسرا کوئی مخلوقات میں سے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی مدد کر سکتا ہے، اگر اس تصور کے ساتھ مدد کے لیے پکارا جائے گا تو یہ شرک۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اگر آپ اس تصور کے ساتھ مانگیں کہ اصلاً تو اللہ ہی دینے والا ہے، مدد اللہ ہی کرے گا، لیکن کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ہم ان سے کہیں گے تو یہ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے یا اللہ سے مدد طلب کر کے ہماری مدد کر، تو اصلاً تو مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، لیکن یہ درمیان میں ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ میں، لیکن اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس پہ جو عام طور پر دلائل دی جاتے ہیں وہ اسی طرح دیے جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی، جیسے اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں کسی انسان سے مدد مانگوں گا، تو وہ جو ہے وہ مثال ہے یا وہ جو دلیل ہے وہ حجت نہیں بنتی یا وہ دلیل قابل اعتبار نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک جو ظاہر کا عالم ہے اس میں اجازت، لیکن جب بندہ غیر میں چلا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت نہیں، تو اللہ کے علاوہ بھی کسی کو مدد کے لیے پکارنا ناجائز ہے۔
जैसे आम तौर पर हमारे यहाँ असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उस तरह पुकारा नहीं जाता। ज्यादातर जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो तस्वर मशहूर है, वो ये शिया की वजह से सुन्नियों में भी आ गया। हालांकि जो है वो सहाबा तो बाकी भी हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन ज्यादातर जो नारा लगाया जाता है वो या अली मदद का लगाया जाता है। तो वो हमारे एक उस्ताद हैं, तो उनको मैं सुन रहा था, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल उन्होंने दी कि गौर करने वालों के लिए, कि एक इंसान है जब वो फौत होता है, वो अल्लाह का वली भी है, जब वो फौत हो जाता है तो वो हमारा मोहताज हो जाता है फौरी। हम उसे गुस्ल दे लेते हैं, हम उसे कफन पहनाते हैं, हम ही उसे कब्र में उतारते हैं। अच्छा, उस कब्र पर मिट्टी वगैरह डाल के, जब वो हम उस पर कब्र पे मिट्टी डाल चुकते हैं तो हम समझते हैं कि अब ये हमारी मदद करे। तो ये जो तस्वर है ये काबिल कबूल नहीं है, सही नहीं है। तो इसी तरह इसलिए ये जो दो क्या कहते हैं टर्म्स हैं, इबादत और ये जो नस्ताइन है, ये बहुत क्रिटिकल है। इनको अच्छे तरीके से इंसान समझ ले तो इंसान को बहुत सारे तस्वुरात जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह कहा है कि जब जब पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। इसके बाद अगली आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। इसमें जो है मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान में लिखा है कि लफ्ज़ हिदायत की बेहतरीन तशरीह जो है वो इमाम रागब अस्फहानी ने मुफरदातुल कुरान में तहरीर फरमाई है, जिसका खुलासा ये है कि हिदायत के असली माना है किसी शख्स को मंजिल मकसूद की तरफ मेहरबानी के साथ रहनुमाई करना और हिदायत करना। हकीकी माना में सिर्फ अल्लाह ताला ही का फेल है, जिसके मुख्तलिफ दर्जात। अच्छा, आप तसव्वुर करें ना कि एक इंसान है जिसको ये इसका इदराक हो गया कि मेरा रब अल्लाह है, अब वो बड़ा अजीम है, रहमान रहीम है, बदले के दिन का मालिक है। अब उसकी इबादत करनी, जैसे इसी में इंसान दावा करता है ना कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अब जाहिर बात है, इबादत कैसे होगी? तो वो जो रास्ता है इसलिए वो जरूरी है। इसलिए अगली दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। हिदायत जो है वो उसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। मसलन एक हिदायत है, जैसे पिछली दफा भी मैंने कहा था ना कि मैं जो है वो खाना खाता हूँ, लेकिन उस खाने के बाद जो उस खाने पर प्रोसेस है वो मेरा जिस्म करता है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वो किसने सिखाया उसको? वो अल्लाह ने सिखाया। अब ये एक हिदायत का लेवल है जो हर हर मखलूक में है। जैसे चांद को अल्लाह ताला ने हिदायत दी हुई है कि ये तुम्हारा जो है वो रास्ता है, इस पे तुमने चलना है। सूरज को अल्लाह ताला ने हिदायत दी हुई है, तुमने इस पर चलना है। जमीन को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, तुमने इस रास्ते पर चलना है, ये फल उगाने हैं, ये तो मुख्तलिफ जो है वो उस पर मौसम है। ये सारे एक हिदायत का लेवल है। अच्छा, दूसरी हिदायत का लेवल जो है वो इंसानों के लिए खास है, मतलब इंसानों के साथ, कि अल्लाह की तरफ से जैसे ये कुरान अल्लाह की हिदायत है, अम्बिया लेके आते हैं, तो वो भी एक हिदायत का दर्जा है। एक फिर अल्लाह के खास बंदों की जो है वो हिदायत है। तो ये सारी जो है, या रसूल जो है अल्लाह के अम्बिया, उनका भी हिदायत है। तो ये सारे दर्जात जो है वो इस हिदायत में शामिल है। अच्छा, आगे है दूसरा, इसमें ये तो हो गई हिदायत। दूसरी चीज जो इसका हिस्सा है वो है सिरातुल मुस्तकीम। ये भी अहम चीज है। तो अल्लाह ताला जो है वो एक जगह फरमाते हैं, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और जिन लोगों ने हमारी खातिर कोशिश की है, हम उन्हें जरूर बिर जरूर अपने रास्तों पर पहुंचाएंगे, और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। यहाँ हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। और इस आयत में अल्लाह ताला जो है वो वादा फरमा रहे हैं और एक यकीन दहानी करा रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारी खातिर कोशिश की है, हम हमारे रास्तों की तरफ, हम उन्हें जरूर जरूर अपने रास्तों पर पहुंचाएंगे, और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। तो इसी तरह जो है वो एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिरात मुस्तकीम के बारे में। मसनद अहमद की एक हदीस में भी मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की कि सिरातुल मुस्तकीम के दोनों तरफ दो दीवारें हैं, उनमें कई एक खुले हुए दरवाजे हैं और दरवाजों पर पर्दे लटक रहे हैं।
सिरातुल मुस्तकीम के दरवाजे पर एक पुकारने वाला मुकर्रर है जो कहता है कि ए लोगो, तुम सब के सब इसी सीधी राह पर चले जाओ, टेढ़ी तिरछी इधर उधर की राहों को न देखो, न उन पर जाओ। और उस रास्ते से गुजरने वाला कोई शख्स जब इन दरवाजों में से किसी एक को खोलना चाहता है तो एक पुकारने वाला कहता है, खबरदार, इसे न खोलना। अगर खोला तो उस राह लग जाओगे और सिराते मुस्तकीम से हट जाओगे। बस सिराते मुस्तकीम तो इस्लाम है, और दीवारें अल्लाह की हदें हैं, और खुले हुए दरवाजे अल्लाह ताला की हराम करदा चीजें हैं। और दरवाजों पर पुकारने वाला कुरान करीम है, और रस्ते के ऊपर से पुकारने वाला जिंदा जमीर है, जो हर ईमानदार के दिल में अल्लाह ताला की तरफ से बतौर वाइज के होता है। तो ये उस सिराते मुस्तकीम की तफसील है जिसकी हम दुआ मांग रहे हैं, कि एक अल्लाह का रास्ता है जिसके दोनों तरफ दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। मतलब इसका ये है कि अल्लाह का रास्ता है, बस वो जन्नत की तरफ जाता है, वहां अल्लाह की रजा है। तो उस तक पहुंचने तक इंसान के जो है वो रास्ते में ये खिड़कियां दरवाजे मौजूद हैं। वो चलता चलता कहीं भी अगर वो बेगौरी का शिकार होगा, कोई जो है वो अल्लाह ताला क्या जो है वो आखिरत का इस्तेहदार नहीं होगा, शैतान उस पर हावी हो जाएगा, या किसी की वजह से भी अल्लाह के हुक्म को इग्नोर कर देगा, तो वो किसी वक्त भी रास्ते से भटक सकता है। जैसे हराम का जो कमाई है वो भी एक दरवाजा ही समझ लेना, जैसे मुख्तलिफ दरवाजे हैं। तो अगर वो बंदा चल रहा है लेकिन रास्ते में कहीं उससे मुश्किल आई, लेकिन वो हराम में पड़ गया, अब वो वापस निकल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है वो फिर उस डी ट्रैक हो गया ना, वो रास्ता कहीं उसे दूसरी तरफ जहन्नम में ले जाएगा। तो ये मुसलसल दरवाजे जब तक इंसान की जिंदगी है, वो दरवाजे इसके सामने आ रहे हैं, हर लम्हे आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं, सालों के बाद आ रहे हैं, कहीं कहीं ये दरवाजे आ रहे हैं। तो उसे उससे बचना है। अब उस पर दो पुकार लगाने वाले ये भी बड़े अहम है। एक पुकार लगाने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कुरान को बताया, जैसे हमने पहले भी हदीस में पढ़ा था ना, कि ये अल्लाह की रस्सी है, इसको मजबूती से थाम लोगे तो गुमराहियों से बचोगे। अच्छा, इसको मजबूती से थामे रखेंगे, उसकी पुकार पर कान रखेंगे, तो फिर हम उन दरवाजों की तरफ जो है वो मुतवज्जे नहीं हो। हमारा फोकस, अगर हमने कुरान को मजबूती से थामा हुआ है और फोकस उसके बुलाने की तरफ है, तो फिर हमें इर्द गिर्द में जो दरवाजे हैं या जो निकलने की जो क्या कहते हैं खिड़कियां हैं, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाएगी। हमारा फोकस सीधा अल्लाह की रजा पर होगा, आखिरत पर होगा, अल्लाह की जन्नत पर होगा। और दूसरा जो है वो पुकारने वाला इंसान के अंदर जमीर है, और ये भी हर इंसान के साथ लगा हुआ है। वो इंसान अपने जमीर की उस बात को इग्नोर करता रहे गुमराही के मौके पर या कोई गुनाह करते हुए, तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन जमीर बताता जरूर है कि तुमने ये गुनाह का काम किया। इंसान, हम सब गौर कर लें, कल ही बेशक गौर कर लें या इस लेक्चर के बाद, कि जैसे ही आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे, किसी के साथ कोई ऊंची आवाज में बात करेंगे, या कोई ऐसा अमल करेंगे जो अल्लाह ताला को ना पसंदीदा है, तो आपके अंदर से आवाज जरूर आएगी कि हाँ, ये तुमने गलत किया। तो उसको इंसान इग्नोर कर दे तो उसकी मर्जी, या फिर उसके लिए कोई जो है वो मोल्ड निकाल, वो तसल्ली के लिए, जैसे हराम कमा के लोग मस्जिद बना दी, गरीबों की मदद कर दी। अब अल्लाह ताला ने हराम कमाना ही मना किया, वो तो बाद में है ना, गरीबों की मदद और मस्जिद बनाना या नेकी के काम बाद में। लेकिन वो क्या है कि जमीर तो इंसान के अंदर लगा है। तो वो बताता है कि हमारे यहाँ पंजाब में तो मशहूर था ना, कि वो मशहूर है कि ये डाकू बड़ा अच्छा था, लोग अमीर लोगों से डाके जो है वो लूट के तो लोगों गरीब लोगों में तकसीम करेंगे। ये आम मुहावरा पहले से, तो ये आज भी चल रहा है, लोग लोगों के हकूक खाते हैं और गरीब लोगों में तकसीम करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने तो हकूक खाने में ही या लोगों की जो है वो अ, हक खाने से ही मना किया है। इसी तरह एक और हदीस है, हजरत जाबर इब्ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, आपने एक लकीर खींची और दो लकीरें उसके दाएं जानब और दो बाएं जानब खींची, फिर अपना हाथ बीच वाली लकीर पर रखा और फरमाया, ये अल्लाह का रास्ता है। फिर इस आयत की तिलावत की, व व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही। यही मेरा सीधा रास्ता है, बस तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो, वरना ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। अच्छा, इससे भी पता चलता है कि सीधा रास्ता एक ही होता है, और जो गुमराही के रास्ते हैं वो ज्यादा होते हैं। अच्छा, इस हदीस में एक दूसरी रिवायत में जो है कि ये चार रास्ते अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, इन चार रास्तों के सिरों पर शैतान है, चारों पर जो पुकार रहे हैं अपने रास्तों की तरफ। तो जो है वो
क्या कहते हैं, बाद लोग जो है वो इतने कच हैं, इंसान क्या है, ये जो साहब इस्लाम वाले, उनमें सुन रहा था क्लिप, तो वो कह रहे थे आप इस हदीस की तत्बीक वो चार जो मसालक हैं अहले सुन्नत के, उन पर कर रहे थे। तो ये बहुत ही जो है वो कद फहमी और ज्यादती की बात है, ये अपनी हद से तजावज करने वाले की बात है। अगर आप इस पूरे मफहूम के साथ हदीस को माने कि उनके सिरों पर शैतान है, तो ये जो है वो अपने मर्तबे से, अपनी हैसियत से बढ़ के किसी पर जो है वो इल्जाम लगाने की, या समझे कि आप पूरी जो है मुसलमान उम्मत के गिरोह की और उनके आइमा की जो है वो की तशबीह कर रहे हैं शैतान और उसके रस्तों के साथ। तो इन चीजों से बचना चाहिए। तो शैतान के जो रास्ते हैं, अब इससे पता चला कि रास्ता एक ही होता है। अच्छा, इंसान को रास्ता क्यों अल्लाह ताला को उससे रास्ता इंसान को जो है वो मांगने की जरूरत है, ये भी एक सवाल है। इसका जो अगर आप मिसाल से समझे ना, कि एक इंसान है, मतलब जंगल में खड़ा है, अब जंगल से बाहर जाना है उसको, तो वो कैसे जाए? जारी बात है, उसे उसके लिए चाहिए, रास्ते का मालूम होना चाहिए ना। इसी तरह हम जो इस दुनिया में हैं, तो ये दुनिया गुमराहियों की, अल्लाह की नाफरमानियों की, अल्लाह ताला से बगावत की, तो अल्लाह ताला की आजमाइश है ना, तो ये एक आजमाइश का जंगल ही समझ लो। तो उन आजमाइश के जंगल से गुजरने के लिए हमें रास्ता चाहिए। तो वो हम खुद से तो नहीं ढूंढ सकते ना। अब अल्लाह गैब में है, इंसान खुद से क्या, कैसे अल्लाह को जो है वो अल्लाह तक पहुंचेगा, कि अल्लाह ताला कैसे राजी होता है, मैं कैसे इबादत करूं तो अल्लाह राजी होगा, किस रास्ते पर चलूं तो अल्लाह राजी होगा। तो ये जो रास्ता है ना, तो ये रास्ता असल में जाहिर बात है वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। तो ये इंसान की मजबूरी है कि अगर इंसान अल्लाह पर ईमान रखता है, तो उसे पता हो कि सही रास्ता क्या है, सही तर्ज जिंदगी क्या है जिससे अल्लाह राजी होता है। और फिर इंसान जो है वो उस पर चलते चलते अल्लाह के साथ उसकी आखिरत में जन्नत में मुलाकात हो। और फिर ये है कि सीधे इतनी गुमराही होने के साथ, जब इतने गुमराहियों के रास्ते हों, तो वहां भी इंसान को ये चाहिए, तो जुल्मात है, हर तरफ गुमराही है, अंधेरा है, तो रोशनी की तो जरूरत है। इसलिए जो है वो इंसान अल्लाह ताला से ही दुआ करता है कि अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे। अच्छा, ये सीधे रास्ते की हिदायत अल्लाह के साथ आप कोई दे भी नहीं सकता। आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे, तो ये हिदायत देना खास अल्लाह ताला के हाथ में है। मुख्तलिफ जगह पे आ जाएगा कि इंसान को इंसान हिदायत नहीं दे सकता। अंबिया को मुखातिब करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगह पर ये फरमाया है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। अच्छा, आगे ये है कि ये सीधा रास्ता, लेकिन किन लोगों का सीधा रास्ता? तो उसमें आगे फिर खुद ही जो है वो इंसान जो है वो कहता है कि सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम है। अच्छा, वो क्यों जरूरी होता है, मिसालें क्यों जरूरी है? वैसे उस मिसाल को मैं दोबारा देता हूँ कि एक इंसान एक जंगल में है, उसमें मुख्तलिफ रास्ते हैं। अब अगर वो रास्ते जो हैं उन वाजे नहीं है, वो देख तो रहा है रास्ते तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो बाहर कैसे जाएगा? अगर ऐसा रास्ता हो जिस पर चलकर वो पुख्ता हो चुका हो और उसके निशानात वाजे हों, तो इंसान को कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे पिछले हमने हदीस में पढ़ी ना कि रास्तों में मुख्तलिफ खिड़कियां हैं। अब थोड़ी देर इंसान चले, आगे रास्ते में फिर चौक आ गया, चौराया आ गया, दोराया हो गया, कैसे पता चलेगा? अगर उससे आगे फुट स्टेप पे लोग चल रहे हैं, तो फिर वो देख लेगा, हाँ ठीक है, इस तरफ लोग जा रहे हैं, इसी तरफ जाना है। तो इसलिए इस रास्ता उन लोगों का जिन पर अल्लाह का इनाम हो। और दूसरी बात यह है कि इंसान का ये भी एक नफसियाती मसला है कि इंसान मिसाल से आसानी से समझ सकता है। फिर यह है कि अगर इंसान एक रास्ते पर चलना है, उस पर कोई मुश्किल आ गई है, उसने कैसे चलना है, जैसे नमाज ही है। नमाज हम इबादत करना चाहते हैं अल्लाह की, कि नमाज पढ़ो, तो हम कैसे पढ़ेंगे? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना हमारे सामने ना हो, तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए नमूना जरूरी है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज करो, कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी नमूना जरूरी है। अच्छा, अल्लाह ताला ने कहा जुल्म से रोको, कैसे रोकेंगे? उसके लिए भी जरूरी है। अच्छा, अल्लाह ताला ने कहा सब्र करो, कैसे सब्र करेंगे? उसके लिए भी जरूरी है। तो इसमें दुआ क्या है? सरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो इसमें भी अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वमन युति अल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। अच्छा, ये अनअमता अलैहिम कौन है?
وہ इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए। और जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और वो कितने अच्छे साथी हैं। तो ये नमूने के तौर पर अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया कि ये लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अब सरा अगर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली लाना चाहता है, उसमें चेंजिंग करना चाहता है, उसमें जो है वो अच्छाई लाना चाहता है, उसमें बढ़ोतरी लाना चाहता है, उसके अखलाक किरदार में इंसान चाहता है कि अच्छाई हो, तो जाहिर बात है वो फिर इन लोगों की जिंदगियों को पढ़ेगा कि इन लोगों की जिंदगी गुजारने का क्या तरीका है। अच्छा, ये तरीका भी अगर इंसान पर गौर करें ना, तो इसमें सबसे पहला इंसान का जो है वो तर्ज फिक्र होता है। जैसे ये सरातल्ला जीना है, लोगों का रास्ता है, तो इससे मुराद वाज़ेह है, ये लोगों के रहने रहने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है। तो वो तर्ज जिंदगी में सबसे पहली पहली चीज इंसान की है वो तर्ज फिक्र। अच्छा, ये तर्ज फिक्र कैसे बनती है? ये इंसान सीखता है, मुआशरे से सीखता है, जैसे आजकल हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इल्म से सीखता है। तो वो इंसान की जो तर्ज फिक्र है वो बेस होगी उसके बाद जो भी उस पे इंसान अमली जिंदगी में जो करेगा उसके बाद तो जो तर्ज फिक्र है वो कैसी है, कैसी होनी चाहिए, वो भी उसके लिए भी नमूना यही है। तर्ज फिक्र कैसी होनी चाहिए? जैसी अम्बिया की। कैसी होनी चाहिए इंसान की सोच? जैसी सिद्दीकीन की थी। कैसी होनी चाहिए सोच? सोच कैसी? शुहदा की। कैसी होनी चाहिए? जैसे सालिहीन। अच्छा, अब इंसान गौर करे कि जाहिर बात है आगे कि मेरी जो सोच है, ये जो मेरी तर्ज फिक्र है, जो जिंदगी के बारे में, गुजारने के बारे में, इस दुनिया के बारे में जो तर्ज फिक्र है वो किन लोगों के साथ मिलती है, ये हर इंसान को गौर करना चाहिए। आगे फिर जिंदगी का सारा लाहेअमल उसी पर डिपेंड करेगा। हमारा मसला ये है कि हम चूंकि दीन से दूर हैं, ना हम कुरान पढ़ते हैं, ना हम हदीस पढ़ते हैं, ना हम सीरत पढ़ते हैं, ना हम जो है वो इन सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की जिंदगी पढ़ते हैं। तो अब जारी बात है इल्म की बुनियाद पर तर्ज फिक्र बनेगी, तो इसलिए अक्सर मुसलमानों की तर्ज फिक्र और अल्लाह के बागियों की तर्ज फिक्र में फर्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो जिस तरबियती निज़ाम से वो दोनों निकल कर आते हैं, जिस तलीमी निज़ाम के वो दोनों निकल के आते हैं, वो एक ही है। अच्छा, मसला ये हो गया कि जितना भी हमारा तरबियती निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है, वो अल्लाह की बगावत पर है। जैसे हमने शुरू में देखा था ना कि ये सारी कायनात अल्लाह ने तख्लीक की है। लेकिन जो हमारा तरबियती निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है, उसमें ये बात बताई जा रही है या ओवरऑल पूरी दुनिया में कि ये जो मखलूक में जो भी तख्लीक है, ये असल में तख्लीक नहीं है। ये इर्तिका के नतीजे में पैदा हुई है खुद। तो पीछे जो जितना भी इल्म है, आप साइंस का इल्म पढ़ लें, उसकी बुनियाद भी अल्लाह के इनकार पर खड़ी है। आप माइशत का इल्म जो जदीद है वो पढ़ लें, आप लिटरेचर लिटरेचर पढ़ लें, ह्यूमैनिटीज पढ़ लें। तो और फिर हमारी जो खुद सोसाइटी जिस बुनियाद पर खड़ी है वो है मुसाबकत, कंपटीशन, किस में? पैसे में। हम खुद अपने ऊपर गौर करें तो हमारे वालिदैन का फोकस क्या था कि हमने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी है कि ये दुनिया से पीछे ना रह जाए। अच्छा, ये तर्ज फिक्र है जिस पे हमारी तरबियत हुई। लेकिन अगर आप हाँ इस तर्ज फिक्र पर गौर करें, अम्बिया की तर्ज फिक्र क्या है, वो क्या तर्ज फिक्र सिखाना चाहते हैं। अच्छा, उसके अगर नमूने देखने हो तो उमर रजी अल्लाह तआला को देख लें, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को देख लें, अबू जर को देख लें, हजरत अली रजी अल्लाह तआला को देख लें, इब्ने उमर को देख लें, तलहा, जुबैर, कितने ही सहाबा हैं, सबको देख लें कि उनकी तर्ज फिक्र की फर्क क्या होगा। एक जो अम्बिया तर्ज फिक्र सिखाते हैं या उनकी तालीम की बुनियाद पर, उनकी तरबियत की बुनियाद पर, जो इंसान जिस तर्ज फिक्र का इंसान पैदा होता है या उस इंसान की तर्ज फिक्र जिस सांचे में डलती है, वो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो किसी दूसरे इल्म से पैदा होती है। और उसमें जो बुनियादी फर्क वो ये है कि जो अम्बिया की तालीम की बुनियादी में तर्ज फिक्र पैदा होगी, वो आखिरत ओरिएंटेड होगी, वो अल्लाह की रजा की ओरिएंटेड होगी। उसका जो मरकज है वो अल्लाह की रजा और अल्लाह की नाराजगी होगी। उसका मरकज आखिरत में अच्छाई बुराई, आखिरत में नतीजा होगा। लेकिन जो किसी भी दूसरे इल्म की बुनियाद पर तर्ज फिक्र पैदा होती है उसमें दुनिया सेंटर्ड है। आजकल जो इल्म सारी दुनिया में पढ़ाया जाता है और जिसकी बुनियाद पर, जिस तहजीब में हम रह रहे हैं, वो तहजीब जिस बुनियाद पर बनी है वो दुनिया सेंटर्ड है। मतलब दुनिया के अंदर, इस अंदर जाहिर में जो कुछ है
وہ खुद ब खुद कहीं से पैदा हो गया था, अब उसी पर फोकस करके जो है वो तर्ज फिक्र पैदा होती है। इसीलिए हमें जो है वो गैर क्या कहते हैं उसको, महसूस तरीके से मुसलमान जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई तब्दीली क्यों नहीं महसूस होती। आप उसकी मुसलमानों की जिंदगी पर गौर करें तो उनकी जो जिंदगी है वो किसी भी काफिर से, किसी भी ईसाई से, किसी भी हिंदू से कोई खास फर्क नहीं होती। वही काम वो कर रहा है, वही काम वो कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पीछे जो तर्ज फिक्र है वो एक ईमान या वो एक अकीदा तो है जहन में कि अल्लाह पर है, ईमान आखिरत पर है, लेकिन वो एक्चुअल जो यकीन है वो नहीं पैदा होता। क्योंकि इल्म जो बुनियादी इल्म है जिस जो हमने सीखा, वो इल्म आखिरत के इनकार पर खड़ा है, अल्लाह के इनकार पर खड़ा है। अच्छा, इसी तरह आप देखें ना कि अच्छा इसी को आप देख लें अब। फर्क कैसे करेंगे कि बेशक इंसान मजहबी लिबादे में हो, गैर मजहबी लिबादे में हो, मुसलमान सोसाइटी में अगर आपने फर्क करना है कि इस इंसान की तर्ज फिक्र सही है और इस इंसान की तर्ज फिक्र नहीं ठीक, ये पहला स्टेप है। तो आपको इन जो ये चार लोग बताए हैं, चार कैटेगरीज अल्लाह ताला ने इस आयत में बताई हैं, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इनकी तर्ज फिक्र का इल्म हासिल करें। नबी कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कैसे सोचते थे, लूत अलैहिस्सलाम का क्या तर्ज अमल था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या तर्ज अमल था, याकूब अलैहिस्सलाम का क्या तर्ज अमल था। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हसना है। उनका सोचने का तर्ज अमल, वो किस तरह सोचते थे, किस तरह की तालीमात है उनकी। इसी तरह जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल। अच्छा, फिर ये है कि उन अम्बिया के नतीजे की तालीम के नतीजे में जो लोग पैदा हुए, जैसे हमारे लिए जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका तर्ज जिंदगी सोच क्या था, उनकी फिक्र क्या थी, उनका अगर हम सीरत पढ़ें तो वो उनसे जो चीजें मनकूल हैं, जो अमाल हैं, उससे हमें समझ आएगी कि उनकी तर्ज फिक्र क्या। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी भी गौर कर लें, उनकी तर्ज फिक्र क्या थी। इसी तरह बाकी सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की नतीजे में एक फिक्र जो डेवलप हुई, अगर हम उसका इल्म हासिल करेंगे तो हम कंपैरिजन कर लेंगे। बेशक एक बंदा ज़ाहिरी तौर पर दाढ़ी है, टोपी है, पांचे जो हैं वो टहनू से ऊंचे हैं, लेकिन फिक्र उसकी ठीक है या नहीं ठीक, वो उससे पता चलता कि अगर उसकी फिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उन सिद्दीकीन, शुहदा और अम्बिया या सालेहीन से मिलती है, उसकी सोच फिक्र, तो फिर तो ठीक। अगर नहीं तो उसका हजारी हुलिये से इंसान को धोखा नहीं खाना चाहिए। वो पैरवी के लायक नहीं। पैरवी के लायक या जो है वो वही है जो उस क्राइटेरिया पे, उस पैमाने पे पूरा आता रहो, ये फिक्री लिहाज से है। अजदारी बात है, मेजर फिक्र जैसे हम मैंने कहा था कि इस्लाम की जो फिक्र है या इंसान, इस्लाम जो तस्वर देता है या कोई भी मजहब जो तस्वर देता है कायनात के